Hello students, today I am going to start the class 10th biology section and before I start the chapters, first see the course structure of 2024 and 25. So let's see, in my screen you can see the course structure of annual exam class 10th. These are the units and their mark which are coming in the board exam. Unit 1 chemical substances, nature and behavior, and this is the chemistry section. Second, world of living, it is the biology section. Third and fourth units are the physics section and fifth unit is the bio section. So you can see out of 80 mark, about 30 mark are coming from biology. So next coming to the topic name. You can see in the screen, these are the chemistry topic. Next coming to the first chapter of biology, that is life process. Living beings, basic concept of nutrition, respiration, transport and excretion in plant and animals. Second, control and coordination in animals and plant, where we are going to see trophic movement in plants, introduction of plant hormones, control and coordination in animals, nervous system, voluntary and involuntary and reflex action, chemical coordination and animal hormones. Next is chapter 3rd, reproduction or how do organisms reproduce, where we are going to see the topics like reproduction in animals and plants, that is asexual and sexual, reproductive health, need and method of family planning, safe sex versus HIV or AIDS, childbearing and women's health. Next is heredity and evolution, where the evolution topic is excluded. So we are going to study only heredity. Heredity, Mendel's contribution, law of inheritance of traits, sex determination, brief introduction, and the topic excluded are the evolution and classification, and evolution should not be equated with progress. This topic is excluded. Next unit 3, that is the physics section. Unit 4 also physics section. Next coming to unit 5, that is natural resources. And one chapter is there, our environment. In this chapter, topics like ecosystem, environmental problems, ozone depletion, waste production and their solutions, biodegradable and non-biodegradable substances. These are the topics which are going to cover in this chapter. Note for the teachers or also students are the chapter management of natural resources, that is chapter 16, will not be assessed in the year-end examination. In new publication NCRTs, this chapter is not in your book, but teacher also give you to prepare a project file of this note, where there is no question coming in the board exam, but you have to read this chapter and prepare a project file. If your teacher wants, if your teacher gives to make a project file, then you have to do from this chapter. And this may be for internal assessment and credit may be given for periodic assessment, that is portfolio. Next, practicals. Coming to practicals, first practical is from chemistry, second also from chemistry, third also chemistry, fourth physics, fifth number is physics, sixth is the biology. Chapter 6 from biology section, you can see preparing a temporary mount of leaf pill to sow stomata. Next, 7 also from biology, experimentally show that carbon dioxide is given out during respiration. 8 from chemistry, 9 from chemistry, 10 from physics, 11 number is from also physics, 12 is from biology, where you are going to do the binary fission in amoeba and budding in yeast and hydra with the help of prepared slides. स्लाइड पहले से ही आपकी स्कूल की प्रैक्टिकल लैब में रखा है, मोस्टली स्कूलों में होता है ये, तो आपको बस उन स्लाइड को, प्रिपेयर्ड स्लाइड को बस माइक्रोस्कोप में देखना है, टीचर वो कराना है. 13 physics 1, 14 biology, where we are going to do identification of the different part of an embryo of dicot seed, that is pea, gram or red kidney bean. So with this the topic is completed. The practicals and the topics are completed. Still there are something also here. You can see the question paper design, knowledge and understanding based questions, that are 46%, application of knowledge or concept 22%, formulae analysis evaluate and create 32%.
Types of question, very short answer type questions, objective type questions, essence and region type question, short question, long question, that is source based, case based, passage based, integrated assessment questions. An internal choice of approximately 33% would be provided. And here is the diversification of the internal assessment, 20 mark, that is periodic assessment, 5 plus 5 mark, subject enrichment, that is practical work, 5 mark, and portfolio, that is the internal assessment. The project file, that also carry 5 mark. So with this is your whole chapter syllabus which you are going to study in the class 10th section. Okay. Now, without wasting any time, let's start the first chapter of biology, that is life process. Life process is a lengthy chapter, so it will take I will make 2 videos of this chapter, part 1 and part 2. So let's start the part 1. Life processes. In this chapter, first of all, in the NCERT, according to NCERT, it is said that the first and second pages, what are life processes and how an organism you can classify that are living or non-living. So let's start. Organisms show many properties such as movement, either that is growth related or not. But visible movement is not defining characteristics of life, because a plant may not grow visibly and some animals can breathe without visible movement. Viruses also do not show any molecular movement in them until they infect some cells. Obviously आपको अगर क्वेश्चन करेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो मेनी ऑफ विल से दैट द मूवमेंट, if they move on their own, then that is a living organism. If not, then that is a non-living. But still there are some visual movement is not a defining characteristics of life. That is because plant may not grow visibly and some animals can breathe without visible movement. ये आ गया आपका exception. Viruses also do not show any molecular movement in them until they are infected some cell. Virus अगर एक्सटर्नल है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर है, तो दैट एक्ट लाइक ए डेड ऑर्गेनिज्म. इफ दैट वायरस कम्स इनसाइड ए होस्ट सेल, होस्ट बॉडी, अफेक्टेड ए पर्सन, देन इट विल एक्ट लाइक ए लिविंग. दैट्स व्हाई वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन द सेल थ्योरी. क्लास 9 पे आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी, उसमें वायरस को नहीं ऐड किया गया है उसमें, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स. और क्या दिया गया देखो, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म. ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. उसमें चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इन चीजों से बना हुआ है, बिकॉज मेनी आर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनके जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं उनको मल्टीसेलुलर कहा गया. और कुछ इस तरह से उनकी बॉडी की बनावट हुई है. सेल, tissues, organ system, organism. In plants also same, cell, tissue, organ system and organism. First point, living organisms are well organized structure having tissue, cells or cell organelles etc. Due to the effect of the environment, living structure may be broken down and dead, so they must be repaired. एनवायरमेंट के साथ साथ ये जो लिविंग स्ट्रक्चर है वो टूट भी जाते हैं, कभी कभार ये जो सेल्स हैं वो डेथ भी होते हैं. ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था. हमारे जो सेल्स है सबका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होता है. आरबीसी का 120 डेज है, डब्ल्यूबीसी का 6 to 8 डेज है, इवन लेस देन. और सो दे मस्ट बी रिपेयर्ड. सिंस द स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे मस्ट ऑलवेज मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड. जब ये स्ट्रक्चर्स बने हुए मॉलिक्यूल से, जैसे कि आपका सेल है ये भी बना है मॉलिक्यूल से, तो ये भी अपने आसपास मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट कराते रहते हैं, मटेरियल्स मूव होते रहते हैं. जैसे सेल है तो उसमें ऑक्सीजन एंट्री करता है, यूज होता है, ग्लूकोज एंट्री होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जो पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल्स आपकी रेस्पिरेशन टॉपिक में. अब पढ़ते हैं व्हाट इज लाइफ प्रोसेसेस. Life processes are all the maintenance process to prevent damage and breakdown of body of an organism. It is all the maintenance process. मेंटेन करके रखता है हमारी बॉडी को,
डैमेज से बचाने के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए। और उसके लिए क्या क्या चाहिए? लाइफ प्रोसेस में कौन कौन आते हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, न्यूट्रिशन, respiration, excretion and growth. Even some more also you can add, that is reproduction also, okay, movement also, control coordination also. For this energy is needed from outside. Obviously इन सब चीजों को करने के लिए एनर्जी कहाँ से चाहिए हमें? बॉडी के बाहर से। दिस एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड फूड। उस एनर्जी सोर्स को क्या कहा गया? फूड कहा गया। हमें खाना चाहिए होता है। Since life depends on carbon-based molecules, most of the food sources are carbon-based. Obviously, लाइफ जो पूरी तरह से कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से ही बना है, जितने भी लाइफ स्ट्रक्चर आप देखते हो, जैसे कि इंसान की बॉडी हो गया, कोई जानवर हो गया, डेथ हो गया, जला दिया जाता है, तो जलाने पर पूरी बॉडी क्या होता है? कार्बन में ट्रांसफर हो जाता है, बदल जाता है। सेम कोई नॉन लिविंग थिंग्स भी, पेपर हो गया, बाकी चीजें भी हो गई, उनको भी जलाते हो, वो भी कार्बन में बदल जाते हैं। तो पूरी बॉडी बना हुआ है कार्बन बेस्ड से। तो हमारी फूड भी कैसा होना चाहिए? फूड भी कार्बन बेस्ड होता है। नेक्स्ट, फूड आर ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। ऑब्वियसली हम जो खाना खाते हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है, और वो ब्रोक होता है, सिंपलर बनता है, और फिर हमारी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है। They are finally converted to uniform source of energy for molecular movement and molecules for growth and development. वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं मॉलिकुलर मूवमेंट में, ताकि बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल बन के वो मूव कर सके, सेल इजीली उनको एब्जॉर्ब कर सके, और एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प हो सके। जैसे यहाँ पर दिया गया डायग्राम में, ग्लूकोज एयर से ऑक्सीजन आता है, और फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों बॉडी के अंदर, सेल के अंदर यूटिलाइज होते हैं, जिससे प्रोड्यूस होता है एनर्जी, जो कि मेन सोर्स है डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प होता है। उसके साथ साथ कुछ बाई प्रोडक्ट भी होता है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स ऑफ टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन। Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. Obviously जहां पर ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ग्लूकोज को रिड्यूस करने के लिए, तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है? ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है और ग्लूकोज को रिड्यूस करता है और सिंप्लीफाई बनाता है, तोड़ता है उससे। तो सिंपल इसको कहा गया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन, जो हमारे बॉडी में सारे सेल्स लगभग करते हैं इस चीज को। इन सेल्स वेरियस केमिकल रिएक्शंस क्रिएट्स यूजलेस एंड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट। ऑब्वियसली जब ये एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल बाय प्रोडक्ट है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ये यूजलेस होता है बॉडी के लिए। तो इनको भी बॉडी से टाइम टाइम रिमूव होना पड़ता है। और उसके साथ साथ जो फूड आपका प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड, इनको भी बॉडी से रिमूव होना पड़ता है, और इस प्रोसेस को कहा गया एक्सक्रीशन। नेक्स्ट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द एंटायर सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जिनकी बॉडी एक ही सेल से बना हुआ है, यूनिसेलुलर पढ़ा है आपने क्लास 9th में, उनकी पूरी बॉडी का जो सरफेस है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है। अब एक ही सेल से बने हुए हैं तो ना उनके पास कोई प्रॉपर टिश्यू होगा, ना ही कोई ऑर्गन होगा, तो पार्टिकुलर कोई ऑर्गन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनके पास, क्योंकि एक ही सेल के अंदर ये सारी चीजें हो जाता है, फूड इनटेक होना, गैस एक्सचेंज होना और वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होना। लेकिन जो टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम किस में होता है? ना मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ऑल सेल्स आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। सारे सेल एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं होते। सो सिंपली डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स। तो इसलिए क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन सारे सेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता। इसी वजह से हमारे पास पार्टिकुलर स्पेशल बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट है। वी हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स
टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। जैसे ब्लड है ट्रांसपोर्ट करता है ना, हार्ट हेल्प करता है ब्लड को हर जगह पहुंचाने के लिए, पंप करने के लिए। लंग्स एयर को ट्रैप करते हैं, है ना। स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लीवर, ये पार्टिकुलर हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से खाना इजीली सिंप्लीफाई हो सके। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नीडेड टू कैरी द फूड एंड ऑक्सीजन। ये भी मैंने कहा, एक चीज होता है जो कि इन चीजों को, फूड एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके, जिसको ब्लड कहा गया, और इवन वेस्ट प्रोडक्ट को भी वो ट्रांसपोर्ट कर सके एक्सक्रीट होने के लिए। तो इन सब का रिक्वायरमेंट होती है किसमें? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास इन सब का रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरी सेल जो होता है वो सेल का जो सरफेस है वो कनेक्ट है किसके साथ? आउटर एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, तो पार्टिकुलर ऑर्गन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो आपका टॉपिक सेकंड पॉइंट में जो दिया गया है, सिंपल डिफिजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स, ये आपके इन-टेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाई डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपका आंसर कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यू कैन see the diagrams. It is a plant. It uses the simple inorganic substances, that is carbon dioxide, sunlight, water, minerals, and prepare its food. Amoeba is a type of unicellular organism, and these are the protozoas. And this diagram is the it is a Cuscuta plant, which is a parasite. It is a bread mold, Rhizophus, bread mold, and here the herbivorous, carnivorous, and saprophytes. So these are some examples of the diagram. Next, it is the process of transfer of energy source, that is food, from outside the body to the inside. Nutrition means it is the process of transfer of energy source, that is food, from outside of the body to the inside of the body. Obviously, it is needed for body growth, development, and synthesis of proteins and other substances. किसके रिक्वायरमेंट है ये? बॉडी की ग्रोथ होने के लिए और आपका डेवलपमेंट, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए, और बाकी चीज़ों में भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ही रिक्वायरमेंट है। इवन दो वी आर इनएक्टिव, energy is needed to maintain the state of the body, state of order in the body. Means जब हम इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव कब होते हैं? जब हम सो जाते हैं, स्लीपिंग कंडीशन में सिर्फ आपकी हार्ट बीट होता रहता है, क्योंकि उस टाइम भी कुछ अमाउंट के एनर्जी हमारे कुछ बॉडी की पार्ट, बॉडी की सेल्स को चाहिए होता है, और स्टेट ऑफ ऑर्डर इन द बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी इज नीडेड. General requirement for energy and material is common in all organism, but it fulfilled in different way. Obviously, एनर्जी की रिक्वायरमेंट फूड के थ्रू ही होता है, एनर्जी सोर्स कहा गया इसे, लेकिन ये अलग अलग तरीके से उनकी बॉडी में एंट्री होता है, सबका खाना एक जैसा नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट, और क्या दिया न्यूट्रिशन के बारे में देखो. Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources such as carbon dioxide and water. They are called autotrophs. Example, green plant and some bacteria. कुछ ऑर्गेनिज्म सिंपल फूड मटेरियल को यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज से, नॉन लिविंग सोर्सेज से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, ये सब आ जाएगा आपका. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. Some organisms directly or indirectly dependent on the autotroph for nutrition. They are called heterotrophs, like human being, animals, fungus. We all are dependent on plant directly or indirectly. That's why we are called heterotrophs. They utilize complex substances which are broken down into simpler one with the help of biocatalyst called enzymes. हमारे पास क्या है ना, हम जो प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो उनकी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है उनको एज ए फूड की तरह इंटेक करते हैं, और वो बॉडी में आने के बाद वो सिंप्लीफाई होता है. कैसे होता है ना, हमारे बॉडी को सीक्रेट करता है बायो कैटलिस्ट को, एंजाइम्स की प्रोडक्शन करता है.
और इसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंप्लीफाई होता है बॉडी में और यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स it is a process where an organism prepares its own food from simple inorganic materials. It is a process where an organism prepares its own food. खुद का खाना खुद बनाते हैं। कैसे, कहां से? ना सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से। फोटोसिंथेसिस टर्म से आपको पता भी है, पहले प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा भी है इसके बारे में। इट इज द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स in the presence of sunlight and chlorophyll. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि यूबिक्यूटस है, मतलब कि जो हर जगह अवेलेबल है। ये कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. It mainly occurs in the autotrophs like green plants. So green plants are the autotrophs. Here the equation shows, it is also given in your NCERT, 6 CO2 plus 12 H2O. 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2O के मॉलिक्यूल्स, ये दोनों आपस में मिलते हैं और फिर क्लोरोफिल के अंदर ये चीज होता है. इनसाइड द क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे प्रिपेयर ग्लूकोज and the formula of glucose is C6H12O6. 6 carbon compound glucose is prepared and oxygen also prepared and H2O. During photosynthesis के टाइम पे प्लांट्स को सिर्फ ग्लूकोज का रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता और एक्स्ट्रा वाटर का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता. तो ये दोनों बॉडी से क्या होते हैं? निकल जाते हैं. क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट. कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट. ऑब्वियसली ग्लूकोज क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है. ये प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कराता है. प्लांट भी अपनी ग्रोथ में यूज करते हैं. फ्रूट्स फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है, रीजनरेशन में भी हेल्प होता है ना. नए लिव्स ग्रो होते हैं प्लांट में, नए नए ब्रांचेस आते हैं. प्लांट स्मॉल साइज से लार्ज साइज की होता है. तो इन सब जगह पर ग्रोथ में कार्बोहाइड्रेट हेल्प होता है. नेक्स्ट पॉइंट, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड एज स्टार्च. जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत यूज नहीं होता, अब प्लांट ने अपनी लीफ में प्रिपेयर कर लिया कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को बना लिया. अब उस ग्लूकोज को ट्रांसफर होना है. अब प्लांट में आपने पढ़ा है क्लास 9th में कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन करता है? ट्रांसलोकेशन ना, फ्लोएम करता है. फ्लोएम टिश्यू जो है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, फ्लोएम, वो इसको ट्रांसफर करता है. अब प्लांट क्या है? प्लांट तो भाई एक ही जगह पर है, कोई मूवमेंट शो नहीं करता. प्लांट सिर्फ ग्रोथ ही शो करता है. हम एनिमल्स की तरह मूवमेंट शो नहीं करता, डिस्प्लेस नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह. तो बहुत ही कम अमाउंट की कार्बोहाइड्रेट वो अपनी ग्रोथ में यूज करता है. और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि इमीडिएटली यूज नहीं हुआ, उसको प्लांट स्टोर कर लेता है स्टार्च की फॉर्म में. कहाँ स्टोर करता है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है उसके. कुछ प्लांट है जो कि फ्रूट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जिन फ्रूट को आप खाते हो फ्रूट के फॉर्म में स्टोर होता है. कुछ में फ्लावर की फॉर्म में स्टोर होता है. कुछ फ्लावर भी एडिबल होता है, जैसे कि कॉलीफ्लावर आपका. कुछ जगह पर रूट में स्टोर होता है. आपका कौन आ गया? बीट रूट आ गया, कैरोट, ओके. और आपका आ गया, कुछ प्लांट इसको अपनी स्टेम में स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो, शुगर कैन. और कुछ में लीफ में भी स्टोर होता है, ओके, जैसे कि स्पाइनाच. तो ये एक्स्ट्रा फूड होता है, स्टार्च को आप इनटेक करते हो. और स्टार्च क्या है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का मतलब ग्लूकोज का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. तो इनडायरेक्टली आप क्या करते हो? जब इन चीजों को इनटेक करते हो तो आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाते हो और इनको सिंप्लीफाई होना होता है. इसी वजह से हमारी बॉडी से क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब कुछ बायो कैटलिस्ट और एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो प्लांट में भी ये स्टार्च स्टोर हो जाता है एंड इट सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व. ऑब्वियसली
प्लांट भी इन स्टार्च को यूटिलाइज करता है जब वो अपना खाना नहीं बना पाता, मतलब कि रात के टाइम में। रात के टाइम में यही स्टार्च को प्लांट यूटिलाइज करता है और अपने लिए एनर्जी बनाता है। हमारे बॉडी में भी कुछ एक्स्ट्रा जो एनर्जी होता है वो भी स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। हमारे बॉडी में भी क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, वो भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है हमारी बॉडी में। कहां पर ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा ना, आपकी जो लीवर सेल है, लीवर सेल में ये स्टोर होता है। क्लियर है? लीवर में ही ये स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, याद रखना। और क्या दिया गया है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, देखो ये डायग्राम्स कुछ आपके एनसीईआरटी में है, ये वाला। इस डायग्राम को देखोगे तो मिडरीप, लामिना और लिप ब्लेड, वेन्स, फ्लोएम और जाइलम दैट आर वास्कुलर बंडल्स, और एक छोटे से पार्ट को अगर जूम इन करेंगे तो ऊपर का लेयर हो गया आपका वैक्सी क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, क्लोरोप्लास्ट एंड आपका एयर स्पेसिस, गार्ड सेल, लोअर एपिडर्मिस। ओके, इट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर माइक्रोस्कोप सो दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट। ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है लीफ का। माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ इस तरह के आपको दिखाई देगा, ग्रीन कलर के डॉट्स दिखाई देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, दिस आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपने पढ़ा है क्लास 9th में, क्लास 8 की टॉपिक में। तो इनके अंदर होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल आप देख सकते हो, ये एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर स्ट्रोमा, ग्राना, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है जो कि सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प होते हैं। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। मेन फंक्शन होता है क्लोरोफिल का, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट की तरफ आते हैं, न्यूट्रिशन की टॉपिक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखो इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, देयर आर मेनली 3 इवेंट्स आर ऑकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस as you can see. First event is the absorption of light energy by chlorophyll. क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये पहला इवेंट हो गया, 1 नंबर का ये इवेंट है। सेकेंड, कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी बदलता है केमिकल एनर्जी में, और उसी के साथ साथ क्या होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते ही एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो H2O है वो स्प्लिट हो जाता है, H2O डिवाइड हो गया हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में। थर्ड इवेंट होता है आपका रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ओके, ये मेन इवेंट्स है किसके, फोटोसिंथेसिस के। अब यहां पर ये भी दिया गया, मोस्ट प्लांट्स में तो ये सीक्वेंशियली चलता है। पहला इवेंट 1 वाला सबसे पहले होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड। बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ये सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होता। एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, क्योंकि डेजर्ट प्लांट डेजर्ट एरिया में वाटर की कमी होती है, स्कार्सिटी होता है वाटर का। और हम ये पढ़ने वाले हैं आगे कि फोटोसिंथेसिस में अबाउट कितना ना 90% वाटर क्या होता है, 90% वाटर इवापोरेट हो जाता है। अब डेजर्ट प्लांट वाटर को स्टोर करने के लिए, इवापोरेट ना होने के लिए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही इनटेक कर लेते हैं। दे टेक अप CO2 एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट, और अपने अंदर CO2 स्टोर कर लेते हैं। फिर जब मॉर्निंग के टाइम पे दिन भर क्या होगा, सनलाइट तो पड़ेगा, लेकिन उनको कार्बन डाइऑक्साइड को एंट्री कराने के लिए वाटर को ट्रांसपायर नहीं करना पड़ता है। तो यहां पर क्या हो गया, इस जगह पर आपका ये जो इवेंट्स है ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं होता। किसके साथ, डेजर्ट प्लांट के साथ ये नहीं होता। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट्स। एनसीईआरटी में दिया गया एक्सपेरिमेंट्स, और यहां पर न्यूट्रिशन की टॉपिक में ही मेन 3 एक्सपेरिमेंट्स है। एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए देखो अच्छे से। पहला एक्सपेरिमेंट इज क्लोरोफिल एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट है। कैसे,
देखो पहला लिया गया है, टेक ए पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लिव्स। वेरीगेटेड लिव्स मतलब कि इस तरह के जो लिव्स हैं, जगह जगह पर क्या है, ग्रीन कलर के डॉट होंगे और कुछ जगह पर व्हाइटिश कलर होगा। जैसे कि मनी प्लांट, मोस्टली हर घर में होता है मनी प्लांट, उसकी लीफ को ध्यान से देखना तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, लीफ के ऊपर कुछ कुछ जगह पर क्या होगा, ग्रीन कलर के पैचेस होंगे और कुछ जगह पर पूरा व्हाइट होगा। ओके, जहां पर ग्रीन कलर नहीं होगा, मतलब कि ग्रीन कलर होने का मतलब क्या है, वहां पर क्लोरोप्लास्ट है। ग्रीन कलर नहीं होने का मतलब क्लोरोप्लास्ट नहीं है, वहां पर ल्यूकोप्लास्ट है ना। कीप इट इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। पॉटेड प्लांट लेना है वेरीगेटेड लीफ के साथ, उसको डार्क रूम में रखना है 3 दिन तक। ओके, ताकि वो पूरी तरह से स्टार्च को यूटिलाइज कर सके, जो स्टार्च जो स्टोर्ड फूड था उसको पूरा यूटिलाइज कर सके, मतलब कि डिस्टार्च हो जाए वो पूरा कंप्लीटली। कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। फिर उस प्लांट को सनलाइट में रखना है 6 घंटे के लिए। प्लक ए लीफ एंड मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन ए पेपर। एक लीफ को तोड़ के जितना एरिया में ग्रीन कलर है उन एरिया को मार्क करना है, एक पेपर में मार्क करके रखना है अच्छी तरह से। फिर उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में आपको छोड़ देना है। जो लीफ आपने प्लग किया था, तोड़ा था, उसको बॉइलिंग वाटर में रख देना है कुछ मिनट तक। उसके बाद उस लीफ को बॉइलिंग वाटर से निकाल के एक और बीकर में आपको अल्कोहल लेना है। अल्कोहल लेने के बाद उस अल्कोहल में उस लीफ को डाल देना है, जो लीफ को आपने बॉयल किया था उस लीफ को आपने अल्कोहल में डाल दिया और बीकर के साथ उसको फिर से बॉइलिंग वाटर में रखना है, जैसे कि हीट करना है। डायरेक्टली आप अल्कोहल को हीट करोगे तो वो इवापोरेट हो जाएगा, इसीलिए बीकर में रख के आपको हीटिंग करना है। और ये करने पर क्या होगा ना, लीफ पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगा। लीफ के ऊपर जितने भी ग्रीन कलर का पार्ट था पहले, वो क्या होगा, पूरा कलरलेस हो जाएगा, पूरा व्हाइटिश कलर हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल कंप्लीटली अल्कोहल में डिजॉल्व हो गया है और अल्कोहल का कलर ग्रीन कलर का हो जाएगा। तब आप उस लीफ को निकाल देना है। निकालने के बाद आपको उस लीफ को रखना है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में उसको रखना है कुछ मिनट तक। फिर क्या होगा ना, जितना आपने यहाँ पर जो पेपर में जो मार्क किया था ग्रीन एरिया को, उतना ही पार्ट चेंज हुआ है डार्क ब्लू कलर और ब्लू ब्लैक कलर में वो बदल गया है। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो कि इंडिकेट करता है स्टार्च के प्रेजेंस को, और जो कलरलेस पार्ट था वो व्हाइट ही रहेगा। सॉरी, देखो अभी जो कलरलेस पार्ट था वो क्या होगा, वो व्हाइट ही रहेगा। और इसको हमने क्या कहा, द ग्रीन एरिया ऑफ द टर्न्स डार्क ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एंड कलरलेस पार्ट ऑफ द लीफ शोज नो फॉर्मेशन ऑफ द स्टार्च एंड दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द क्लोरोफिल्स आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट यहाँ पर स्टोमाटा के बारे में दिया गया है, इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में है, देख सकते हो। स्टोमाटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता रहता है स्टोमाटा में। एंड इट ऑल्सो ऑकर अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लिव्स। जरूरी नहीं कि सिर्फ लिव्स में ही हो, कुछ प्लांट में स्टेम में भी होता है, रूट में भी होता है और लिव्स में भी होता है, मोस्टली लिव्स में होगा ही। स्टोमाटा को जूम करके देखोगे, जो कि आपका प्रैक्टिकल है जिसके बारे में आप करने वाले हो बायोलैब में, उसमें आप स्टोमाटा को डायरेक्टली देख सकते हो और कुछ स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा दिखेगा आपको माइक्रोस्कोप में जब देखोगे। डायग्रामेटिकली और जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा आपको। ये जो स्टोमाटा है, स्ट्रक्चर्स क्या क्या है इसमें देखो, गार्ड सेल्स पाए जाते हैं इस तरह से, स्टोमाटल पोर होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल के ऊपर। ये आपका ओपन स्टोमाटल पोर है, ये क्लोज स्टोमाटल पोर है जिसमें कि गैसेस एक्सचेंज होता है। अब पहले क्या होगा ना, जैसे ही लिव्स के ऊपर सनलाइट पड़ेगा, लिव के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ेगा, लिव के ऊपर सनलाइट पड़ने पर क्या होगा ना, लिव के ऊपर जो भी वाटर कंटेंट है वो सब इवापोरेट हो जाएगा। तो इवापोरेट होने के बाद क्या होगा ना, एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको सक्शन प्रेशर कहा जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिव के ऊपर
लीफ के पास पूरे प्लांट में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ना जाइलम करता है ऑब्वियसली। तो जाइलम यहाँ पर क्या करेगा? जाइलम के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा और जाइलम वाटर को इनटेक करेगा सॉइल से, रूट के थ्रू, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीफ के पास आएगा वाटर। लीफ में कहाँ पर आएगा? ना लीफ में स्टोमाटा बहुत सारे नंबर में होते हैं, तो लीफ में आ जाए वाटर गार्ड सेल के पास, यहाँ पर ये वाटर आ जाएगा कुछ इस तरह से, और गार्ड सेल के पास वाटर आते ही गार्ड सेल इसे स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा ऐसे, ठीक है ना, मतलब ओपन हो जाएगा, स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। ये स्टोमेटल पोर ओपन होते ही इसके अंदर एंट्री करेगा आपकी कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री होगा, CO2, ठीक है, CO2 एंट्री होगा इसमें, CO2 एंट्री होगा। और गार्ड सेल के ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, तो यहाँ पर भी सनलाइट तो पड़ ही रहा है, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा? वाटर इवापोरेट हो जाएगा, इसके ऊपर से वाटर इवापोरेट होता रहेगा और धीरे धीरे गार्ड सेल क्लोज होते जाएंगे, और इस तरह से क्लोज हो गया। और तब तक जब तक ये ओपन रहेगा तब तक CO2 जितना प्लांट को चाहिए खाने बनाने के लिए उतना उसने अपने पास स्टोर कर लिया, फिर ये स्टोमाटा क्लोज हो गया। और यहाँ पर बताया जाता है कि 90% ऑफ वाटर इस तरह से लॉस होता है प्लांट्स के थ्रू। इसको हमने कहा ट्रांसपीरेशन। क्या कहा इसे? ट्रांसपीरेशन कहा गया। ड्यूरिंग दिस मच वाटर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू स्टोमाटा। कितना? ना 90%। सो द प्लांट क्लोज स्टोमाटा व्हेन इट डज नॉट नीड CO2, और फिर धीरे धीरे स्टोमाटा क्लोज हो जाता है। फिर प्लांट खाना बनाएगा, फिर वो जो फूड है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो फ्लोएम लेके सब जगह पर पहुंच जाएगा प्लांट में जहां जहां रिक्वायरमेंट है, और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाएगा स्टार्च की फॉर्म में। फिर से प्रेशर क्रिएट होगा और फिर से स्टोमाटा ओपन होगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो प्लांट दिन भर में बहुत बार ये फोटोसिंथेसिस करता रहता है, अपने लिए खाना बनाता रहता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पोर इज रेगुलेटेड बाय गार्ड सेल। ऑब्वियसली स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। When water flows into the guard cell, they swell and the pores open. If the guard cells shrink, the pores closes. ये भी क्लियर है? नेक्स्ट एक और एक्सपेरिमेंट है, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज दैट टू शो द CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस। देखो ये भी NCERT में अवेलेबल है, आपका डायग्राम के साथ दिया गया है। आपको क्या लेना है? टेक टू हेल्दी पॉटेड प्लांट हैविंग सेम साइज, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। 3 दिन तक उनको डार्क रूम में रखना है। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन ए सेपरेट ग्लास प्लेट। नीचे एक ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है आपको, दोनों प्लांट्स को ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है। इन वन प्लेस ए वाच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक में आपको क्या रखना है? यहां पर आपने रखा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH कहा गया। KOH यूज्ड टू एब्जॉर्ब CO2। इस पॉइंट को ध्यान रखना। KOH का काम क्या है? इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, आसपास के एरिया में, एनवायरमेंट में जितना भी CO2 है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसके बाद KOH रखने के बाद दोनों को कवर कर देना है बेल जार से। ये बेल जार है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है? इट इज ए बेल जार। ओके, बेल जार में आपको इसे कवर कर देना है, और प्रॉपरली एयरटाइट करने के लिए आपको क्या करना है ना, कुछ वेसलिन का यूज करना है जिसमें कि ये पूरी तरह से एयरटाइट हो जाए। नीचे की तरफ आपको इसे दोनों जगह वेसलिन यूज कर लेना है ताकि पूरा क्या हो जाए? एयरटाइट हो जाए। अब कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर। 2 घंटे के लिए प्लांट को रखना है सनलाइट में। फिर सनलाइट में रखने के बाद बेल जार को हटा देना है। फिर दोनों प्लांट से लीव्स को निकालनी है, और फिर वही टेस्ट करना है आयोडीन वाला। पहले पानी में बॉयल करना है, फिर उसके बाद एल्कोहल में रखना है जिसके कि वो कलरलेस हो जाएगा, क्लोरोफिल सारा हट जाएगा। अब उसके बाद आयोडीन टेस्ट करना है जिसमें कि आपको उस कलरलेस लीफ को क्या करना है? रखना है आपको कहाँ पे ना, आयोडीन में रख देना है। और लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट विदाउट KOH टर्न्स ब्लू, मतलब कि जो बी वाला प्लांट से जो आपने लीफ तोड़ा था
वो ब्लू कलर में बदल जाएगा, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। डार्क ब्लू कहो या फिर ब्लू ब्लैक कलर कह सकते हो। तो जिसमें KOH नहीं था बी वाले प्लांट में, वो क्या होगा, उसका जो लीफ था वो बदल जाएगा ब्लू कलर में। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और जिसमें आपने KOH रखा था उसने क्या किया, क्योंकि हमने जस्ट अभी ऊपर देखा कि KOH क्या करता है ना, KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ए वाले प्लांट के पास नहीं था, तो इसने कोई भी खाना नहीं बनाया, तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो वो लीफ वैसा ही कलरलेस ही रहेगा आपका आयोडीन टेस्ट के बाद। इस प्रैक्टिकल से, इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब आता है थर्ड एक्सपेरिमेंट पे, जिसमें दिया गया है सनलाइट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये मेन 3 इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। अब सनलाइट की बात करते हैं। देखो, ऐसा एक प्लांट लेना है कि वे प्लांट, एनी टाइप ऑफ प्लांट, प्लेस इट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट इट डिस्चार्ज। 3 दिन तक रखना है ताकि डिस्चार्ज हो जाए। कवर लीफ पार्शियली विथ ए ब्लैक पेपर, एक्सपोज द प्लांट टू सनलाइट फॉर 3 to 4 hours। लीफ को कवर करना है एक ब्लैक पेपर से, जैसे यहां पर कवर किया गया है इस जगह पे, और फिर 3 से 4 घंटे तक एक्सपोज करना है सनलाइट में। रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ एंड परफॉर्म स्टार्च टेस्ट विथ आयोडीन। फिर क्लोरोफिल को हटाना है सेम पानी में बॉयल करके, एंड देन किसके अल्कोहल यूज करके, और उसको स्टार्च टेस्ट कहा जाता है। फिर आयोडीन में उस लीफ को भिगाना है। कवर द लीफ पार्ट, कवर्ड लीफ पार्ट शोज द ब्राउन कलर। जो पार्ट कवर हुआ था वो क्या होगा, इस तरह के ब्राउन कलर शो करेगा, जैसे यहां पर किया गया है। और जो एक्सपोज लीफ था सनलाइट के लिए वो डार्क ब्लू हो जाएगा, मतलब कि जहां सनलाइट पड़ा था वो जगह क्या होगा, उसने स्टार्च मतलब फूड बनाया, और आयोडीन के कांटेक्ट में आके स्टार्च बदल जाता है डार्क ब्लू में। तो जो पार्ट एक्सपोज था, जैसे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, डार्क ब्लू कलर हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्च प्रेजेंट है उसमें। तो ये बताता है एक्सपेरिमेंट कि सनलाइट की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट, और क्या दिया गया देखो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉप्स आर आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स सच एज वाटर एंड मिनरल्स। कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट तो हो गया, वाटर की भी रिक्वायरमेंट करते हैं, मिनरल्स का भी रिक्वायरमेंट होता है। मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम, इनकी रिक्वायरमेंट है, और ये सारे मिल जाते हैं सॉइल से। नाइट्रोजन एसेंशियल होता है, क्यों एसेंशियल है, प्रोटीन्स को बनाने के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस में नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट होता है ज्यादा क्वांटिटी में। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट्स। नाइट्रोजन कैसे एब्जॉर्ब होता है ना, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, नाइट्रेट और नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एक तो सॉइल में ये जो मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, ये नाइट्रेट और नाइट्रेट की फॉर्म में इनटेक होता है, क्योंकि पानी के थ्रू ये नाइट्रेट और नाइट्रेट डिजॉल्व हो जाते हैं, और जाइलम पानी के साथ साथ इनको भी ट्रांसपोर्ट कर लेता है। या फिर और कैसे होता है ना, कुछ बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। एग्जाम्पल राइजोबियम, पढ़ा था आपने इसके बारे में भी प्रीवियस क्लासेस में। राइजोबियम क्या करता है ना, ये पल्सेस प्लांट के रूट के पास आके रह जाता है। जो पल्सेस प्लांट है, चना दाल टाइप के जो प्लांट है, उनके रूट में ये आके स्टोर होता है, और फिर जो एयर में जो नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की परसेंटेज ज्यादा है, 78% नाइट्रोजन है एयर में, उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये क्या करता है, पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेता है, पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लेता है। और जब ये रूट में रहता है तो ये नाइट्रोजन के पार्टिकल्स को रूट में ही स्टोर कर लेता है, जो रूट के आसपास जो सॉइल है वहां पर ही फिक्स कर लेता है, और फिर प्लांट आसानी से इस नाइट्रोजन को यूज कर लेता है एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये पूरा था आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन,
It is a nutrition in which an organism depends on other living organisms for food. Obviously, heterotrophs. Hetero means those organisms that depends on other living organisms for food. क्योंकि फूड ये तो है एनर्जी का सोर्स। तो ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना खाना खुद नहीं बना पाते। जैसे हमने देखा प्लांट्स बनाते हैं खुद ब खुद का अपना खाना, पर ये नहीं बना पाते और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूज फूड बाय वेरियस वे। सबका खाना एक टाइप का नहीं होता, डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म है दे ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। वो खाना को बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल फंगस, इनको कहा गया सैप्रोफाइट्स। क्या कहा गया? सैप्रोफाइट्स कहा गया। फंगस लाइक ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, दिस ऑल आर सैप्रोफाइट्स। ये क्या करेंगे? मोस्टली ये ग्रो होंगे कुछ ऐसी जगह पे जहां पर कोई डेड और डिकेइंग मटेरियल हो। जैसे मशरूम कहाँ ग्रो होता है? डेड प्लांट के ऊपर ग्रो होता है, ये है ना। ये वहां पर ग्रो होंगे और अपने अंदर जो बायोकैटलिस्ट है, एंजाइम है, उसको बाहर निकालेंगे ताकि जो आसपास के जो एरिया जहां पर ये ग्रो कर रहे हैं वो जगह क्या हो जाएगा, वहां पर ये एंजाइम रिएक्ट करके उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई होने के बाद ये उसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहाँ हुआ? बॉडी के बाहर हुआ, ये आउटसाइड द बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड saprotrophs. Then some organism take food and break down inside the body. Like us, हम लोग खाना को, कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी बॉडी के अंदर देते हैं, उसके बाद बॉडी के अंदर ही वो क्या होता है? सिंप्लीफाई होता है। जैसे कि एनिमल्स हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दे टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। बिना मारे ही वो उस ऑर्गेनिज्म के डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फूड को, सिंप्लीफाइड फूड को इनटेक कर लेते हैं। उसको कहा गया पैरासिटिज्म और पैरासाइट्स कहा गया। एग्जाम्पल आपका कसकटा, अमरबेल हो गया जिसका डायग्राम हमने देखा था ऊपर, और टिक्स, लाइस, लीचेस, टैपवॉर्म। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक आता है आपका एक्टोपैरासाइट, एक आता है आपका एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि एक्सटर्नली बॉडी के ऊपर लग जाते हैं। जैसे कि आपका कसकटा हो गया, प्लांट के ऊपर रह जाता है ये। टिक, लाइस, लीचेस ये भी बॉडी के ऊपर रहते हैं, इनको कहा गया एक्टोपैरासाइट। जबकि टैपवॉर्म ये बॉडी के अंदर आके एनर्जी लेता है, तो इसको कहा गया एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट और क्या देगा? देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय देयर एंटायर सरफेस। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से डायरेक्टली बाहर के एनवायरनमेंट से फूड को इनटेक कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर। एट द सेल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, मतलब कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास स्पेशलाइज्ड पार्ट है दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। एग्जाम्पल जैसे यहां पर दिया गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दिया गया है एमीबा। एमीबा कैप्चर फूड using temporary finger-like extensions called pseudopodia. As you can see, ये pseudopodia है और ये भी आपका pseudopodia है। ठीक है, ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में है और ये नॉर्मली आपको समझने के लिए। pseudopodia के थ्रू एमीबा अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाता है, एक्सटेंड करता है, इसे फिंगर-लाइक प्रोजेक्शन जिसको pseudopodia कहा गया। They fuse over the food forming a food vacuole। फिर क्या करते हैं? ये इस तरह के फूड वैक्यूल बनाते हैं, जैसे यहां पर दिया गया है। स्यूडोपोडिया को फॉल्स फीट भी कहा जाता है, फॉल्स फीट, और फूड वैक्यूल को कहा गया टेम्पररी स्टोमक भी कहा जाता है। इन दिस फूड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर वन एंड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। इस तरह से फूड वैक्यूल के अंदर ही एमीबा क्या करता है ना, अपनी सारा एंजाइम बायोकैटलिस्ट छोड़ देता है फूड वैक्यूल के अंदर, ताकि जो फूड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स से सिंप्लीफाई हो जाता है और फिर साइटोप्लाज्म में ही डिफ्यूज हो जाता है। और जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड रहा वो क्या होगा ना, वो भी नॉर्मली सेल सरफेस के पास आता है और फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है।
बॉडी से ऐसे क्या हुआ, बाहर निकल गया। एक्सक्रीशन कहा गया इससे, है ना। द अनडिस्टेंट फूड मटेरियल मूव टू सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट। अब आते हैं पारामेशियम की बात करते हैं। पारामेशियम ये भी एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये थोड़ा एमीबा से कॉम्प्लेक्स है। देखो यहां पर, पैरामेशियम टेक्स फूड एट ए स्पेसिफिक स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। जैसे यहां पर दिया गया डायग्राम में गुलेट कहा जाता है। पैरामेशियम में खाना एक ही जगह से एंट्री होता है, जैसे हमारे माउथ है उस तरह पैरामेशियम के पास क्या है, गुलेट है। ओके, और ये भी मूव करता है, मूवमेंट होता है सिलिया के थ्रू। सिलिया क्या है, यहां पर दिया गया सिलिया देख सकते हो, पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर से उसको सिलिया कहा गया, जिसमें कि पैरामेशियम मूवमेंट में हेल्प होता है और उसके साथ साथ फूड को गुलेट के पास ला सकता है इन सिलिया के हेल्प के थ्रू। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी सेल को कवर करके रखते हैं। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, ये एलिमेंट्री कैनल ना माउथ से लेके एनस तक एक लॉन्ग ट्यूब है, जहां पर कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, ठीक है ना। कंप्लीट लॉन्ग ट्यूब है, इसको कहा गया एलिमेंट्री कैनल, जो कि माउथ से लेके एनस तक कनेक्टेड हुआ है। और यही हेल्प होता है हमारे न्यूट्रिशन में। पहला डायग्राम एनसीईआरटी का है, दूसरा नॉर्मली दिया गया, कुछ ज्यादा चेंजमेंट नहीं है दोनों में। ऑर्गेनेल्स के बारे में दिया गया है, सेम लेबलिंग किया गया है। अब देखो, डाइजेशन स्टार्ट होता है कहां से, फूड डाइजेशन क्या होता है, ये नाइट द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड with the help of enzymes that are biocatalyst into smaller absorbable molecules. कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल क्या होगा, टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा, हेल्प ऑफ एंजाइम्स इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। डिटेल्स पढ़ेंगे। इन माउथ फूड इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ। माउथ में फूड कैसे, टीथ के थ्रू हम चबाते हैं फूड को। और मस्कुलर टंग क्या करता है ना, सलाइवा को पूरे फूड में, च्यूड फूड में मिक्सअप करता है, एंड इट मिक्स विद सलाइवा that is secreted from salivary gland. You can see in the diagram, यहां पर देखोगे तो 3 salivary gland आपको देखने को मिलेगा। एक ये है आपका इस जगह पर, एक इस जगह पर है और एक यहां पर है। 3 salivary gland है। इनकी नेमिंग की बात करेंगे तो सबलिंगुअल डक्ट, सबमैंडिबुलर डक्ट एंड पैरोटिड डक्ट। 3 salivary glands प्रेजेंट है। जैसे ये एक्स्ट्रा डेटा है, बस इतना समझ लो कि सलाइवा पहले जो टंग काम करेगा, खाने को चबा के छोटे छोटे पीस में डिवाइड करना, इसको कहा गया फिजिकल डाइजेशन। और सलाइवा मिक्स होते ही सलाइवा में एक तरह का एंजाइम होता है जिसको हमने कहा सलाइवरी एमाइलेज। वो क्या करता है, स्टार्च को तोड़ के बनाता है सिंपल शुगर में, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर लेता है उससे। ओके, जिसको हमने कहा केमिकल डाइजेशन। इसमें याद रखनी क्या बात है ना, सलाइवा से होता है सलाइवरी एमाइलेज, और इसको क्या कहते हैं, सलाइवरी एमाइलेज का एक और नाम है, इसका एक और नाम है जिसको टायलिन भी कहा जाता है, PTYALIN, टायलिन कहा जाता है इसे सलाइवरी एमाइलेज को। ठीक है, मेन काम क्या है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में बदलता है। सिंपल शुगर को हो या फिर माल्टोज शुगर को हो, एक ही बात है। कुछ बुक्स में आपको, जैसे कि स्टैंड लाइक बुक्स में आपको ये माल्टोज शुगर कहलाता है, तो एक ही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट, यहां पर स्टार्च के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, पर ये एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी समझ लो। एक्सपेरिमेंट टू शो एक्शन ऑफ सलाइवा, किस तरह सलाइवा फंक्शन करता है। आपको लेना है 1 ml स्टार्च सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब A एंड B, दोनों में 1 ml लेना है, 1 में एंड 2 में, दोनों टेस्ट ट्यूब A एंड B में 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है। ओके, ऐड 1 ml सलाइवा
to the test tube A and leave both the test tube undisturbed for 20 to 30 minutes. टेस्ट ट्यूब ए में कुछ सलाइवा लेना है, 1 ml का सलाइवा डालना है, ओके। बी में नहीं डालना है, सिर्फ ए में ही डालना है, ओके, सलाइवा। और 20 से 30 मिनट तक आपको रखना है ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब्स। दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, ए और बी दोनों में डालना है। टेस्ट ट्यूब बी में जिसमें आपका सलाइवा नहीं था, वो वहां पर ब्लू कलर डेवलप होगा, ऐसे ब्लू कलर दिखाई देगा इस तरह से। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि हमने पढ़ा था आयोडीन के कांटेक्ट में आते ही स्टार्च क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर में बदल जाता है। तो बी टेस्ट ट्यूब में जहां पर आपने सलाइवा नहीं डाला था वो क्या होगा ना, ब्लू कलर में बदल जाएगा, जो कि स्टार्च के प्रेजेंस को दिखाता है। और टेस्ट ट्यूब ए में कोई कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आपने सलाइवा डाला था, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर लिया, इसी वजह से टेस्ट ट्यूब ए में कोई कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये दिखाता है एक्शन ऑफ सलाइवा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज योर, हमारे बॉडी में किस तरह से होता है देखो, फूड डाइजेशन। द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल इज सॉफ्ट फॉर स्मूथ पैसेज ऑफ फूड। जो एलिमेंट्री कैनल का लाइनिंग होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है, ताकि आसानी से फूड ट्रैवल कर सके। द मसल्स ऑफ इन द लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिदमेटिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो इस एलिमेंट्री कैनल के लाइनिंग जो होता है, लाइनिंग के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस होता रहता है रिदमेटिकली टाइम टू टाइम, ताकि फूड आगे की तरफ बढ़ सके। और इस मूवमेंट को, जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांस होता रहता है, इसको कहा गया पेरिस्टालिसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा गया। जैसे ये फूड मटेरियल है, यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, इसमें फूड धीरे धीरे आपकी नीचे की तरफ आ रहा है, स्टोमक की तरफ एंट्री कर रहा है, और इस टाइम यहाँ पर ये जो फूड पाइप आपका इसोफागस है, इसमें क्या होता है, विगोरियस कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता रहता है, इसको पेरिस्टालिसिस कहा गया। इट हेल्प्स टू प्रोसेस द फूड प्रॉपर्ली इन ईच पार्ट। और ये सिर्फ आपकी इसोफागस में नहीं होता, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, ये पेरिस्टालिसिस। फ्रॉम माउथ फूड मूव थ्रू द इसोफागस एंड रीचेस टू द स्टमक। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना कि इसोफागस में कोई डाइजेशन नहीं होता, इसोफागस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, ओके। माउथ में हो गया, स्टार्च ब्रेकडाउन हो गया सिंपल शुगर में, इसोफागस में ट्रैवल किया, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट हुआ, और फिर स्टोमक में आ गया फूड। स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स। ऑब्वियसली जब खाना खाते तो स्टोमक थोड़ा स्वेल अप हो जाता है, मतलब एक्सटेंड होता है, एक्सपांड होता है। इट्स मस्कुलर वॉल हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद द डाइजेस्टिव जूसेस। जो स्टोमक की जो वॉल है, ये जो मस्कुलर वॉल है यहाँ पर इस तरह से, यहाँ से क्या होता है ना, इधर प्रेजेंट है आपका, यहाँ पर प्रेजेंट है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी कहा गया। नेक्स्ट, स्टोमक वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो मैंने आपको कहा अभी, स्टोमक वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। जैसे यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, स्टोमक का जो वॉल है कैसा, ये ना कुछ किस तरह के सेल से बना है, स्टोमक का जो वॉल है ना, कॉलमनर एपिथेलियम सेल से बना हुआ है। कॉलमनर एपिथेलियम सेल कैसे दिखते हैं आपको, कॉलम लाइक सेल्स दिखते हैं, ओके। तो स्टोमक वॉल कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड, द रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस। गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस, जिससे कि क्या क्या होता है ना, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और म्यूकस होता है। HCl एक एसिडिक मीडियम बनाता है। अब एसिड है वो खाने के साथ मिलेगा तो क्या होगा, खाना एसिडिक हो जाएगा, जिसके कि दो फायदे होता है। पहला, एसिडिक होने पर पेप्सिन आसानी से एक्ट कर सकता है, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है पेप्सिन। और क्या होता है ना, जो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया जो खाने के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर गए हैं, वो खत्म हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। दो फायदे होता है HCl का।
ठीक है। फिर पेप्सिन क्या करता है ना, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा किसमें, पेप्टोन में, पेप्टोन, ठीक है। पेप्टोन में मतलब कि प्रोटीन का थोड़ा सिंपलर फॉर्म है पेप्टोन, ओके। प्रोटीन कन्वर्टेड बाय पेप्टोन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन which secreted by gastric gland in the stomach. म्यूकस का काम क्या है ना, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस क्या करता है, स्टोमक की इनर लाइनिंग को बचाता है। अब ये तो है तो मसल से बना हुआ है, अब जब मसल से बना है तो एसिडिक अटैक से बचाने के लिए कौन प्रेजेंस होगा ना, स्टोमक क्या करता है, एक लेयर बना देता है। इधर जो म्यूकस है ये से एक लेयर बना देगा इस तरह से, ताकि जो HCl है वो एक्ट नहीं करेगा स्टोमक के मसल से। कभी कभार क्या होता है, जब आप जंक फूड ज्यादा खा लेते हो, ऑयली फूड खा लेते हो, तो क्या होता है ना, आपकी गैस्ट्रिक जूस इम्बैलेंसली प्रोड्यूस होता है, जिसमें कि HCl ज्यादा होगा, पेप्सिन कम होगा, म्यूकस भी कम होगा, क्योंकि जंक फूड में प्रोटीन कम होता है। तो ऑब्वियसली पेप्सिन और म्यूकस की प्रोडक्शन कम हो जाता है, HCl ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका स्टोमक में क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन क्रिएट होता है, जलन स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहा जाता है एसिडिटी। सिंपल, ठीक है ना। जो बर्निंग सेंसेशन होता है इसको एसिडिटी कहा गया। आप बोलते हो कि चेस्ट में जलन हो रही है, चेस्ट में कुछ नहीं होता, वो सब हो रहा है कहाँ पे, आपकी स्टोमक में हो रहा है। और एसिडिटी होते ही क्या किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एड वगैरह देखते हो टीवी में, इनो काम करे सिर्फ 6 सेकेंड। इनो में क्या होता है, इनो में बेसिक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, बेसिक चीजें होता है। तो एसिड और बेस मिल जाता है और एसिड यहां पर न्यूट्रलाइज हो गया, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है और आपको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाता है। तो एक इनो हो गया, और उसके साथ साथ और भी आपका क्या होता है, एंटासिड्स मिलता है मार्केट में, जैसे कि आपका पॉलीक्रोल हो गया, डाइजिन हो गया, इनका यूज कर सकते हैं इस बर्निंग सेंसेशन से राहत पाने के लिए। नेक्स्ट, a sphincter muscle regulates the exit of food in small amount from stomach into small intestine. क्या होता है, एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है एग्जिट ऑफ फूड। अब प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया, HCl ने भी अपना काम कर लिया, म्यूकस ने भी अपना काम कर लिया। अब फूड का स्टोमक में कोई रोल नहीं है। अब स्टोमक में क्या होगा ना, फूड जो प्रोटीन पेप्टोन में बदल गया वो धीरे धीरे एंट्री करेगा, कहाँ पे, स्टोमक से निकलेगा। और यहां पर निकलने के लिए कौन रेगुलेट करता है इस चीज को ना, स्मॉलर अमाउंट में, थोड़े थोड़े अमाउंट में फूड को पहुंचाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन पहुंचाता है, नेक्स्ट स्फिंक्टर मसल होता है। डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में क्या दिया गया है, एक तो इसोफागस की एंडिंग में, स्टोमक की स्टार्टिंग में एक स्फिंक्टर मसल है जिसको इसोफाजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। सेम उसी तरह यहाँ पर स्टोमक की एंडिंग में और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग में एक स्फिंक्टर मसल है जिसको कहा गया पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। देख सकते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया, क्योंकि इस इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत ही थिन है, ठीक है ना, बहुत ही कम है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा गया। लेकिन ये लॉन्गेस्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल का, अबाउट 6.5 मीटर का होता है, ये 6.5 मीटर का होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इन एनिमल्स लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर बेस्ड ऑन द फूड दे ईट। एनिमल में इस लेंथ डिफर करता है, किस तरह के खाना वो खाते हैं। जैसे कि हार्बीवोरस है, इनके पास लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, क्योंकि इनको हार्बीवोरस क्या करते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट को खाते हैं, और प्लांट में ज्यादा क्या होता है ना, सेलुलोज होता है। अब सेलुलोज को डाइजेस्ट होने के लिए बहुत ही टाइम लगता है, इसलिए इनका स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्ग है। और जो कार्निवोरस होते हैं ये तो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते, ये सीधा एनिमल्स को ही खाते हैं, हार्बीवोरस को खाते हैं, तो जो कि मीट खाते हैं, इसी वजह से मीट आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है, तो इनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है, शॉर्टर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट।
स्पॉन्टेनियस वो जगह है जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। इट रिसीव्स सिक्रेशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रिएज, और कंप्लीट डाइजेशन करने के लिए इसको लिवर और पैनक्रिएज का भी हेल्प मिल जाता है। ओके, लीवर का फंक्शन देखते हैं पहले। लीवर सिक्रेट बाइल जूस। लीवर क्या करता है? बाइल जूस को सिक्रेट करता है। मतलब कि यहाँ पर लीवर जो है ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा, लीवर से बाइल जूस प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको गल ब्लैडर कहा जाता है। गल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होगा। जैसे ही फूड ट्रैवल करेगा लीवर के थ्रू होते हुए तो क्या होगा? यहां से बाइल जूस सिक्रेट होगा। पहला तो क्या होगा ना, इट इमल्सिफाइज फैट। बाइल जूस क्या करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है। कैसे? देखो, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट और बाइल जूस। इमल्सिफाइज फैट का मतलब क्या होता है ना, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट के जो दाने होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कैसे ना? बाइल जूस की हेल्प लेके। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइमेटिक एक्शन। और किसमें ये हेल्प करता है? एंजाइम, बाकी एंजाइम के एक्शन में भी ये हेल्प करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है ताकि वो जल्दी से खाने को सिंप्लीफाई कर सके। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डार्ट। ये वही चीज है जैसे कि साबुन का आपने पानी में डाल दिया तो क्या होता है? वो गलने लग जाता है पूरी तरह से। सेम उसी तरह फैट भी इस बाइल जूस के कांटेक्ट में आने के बाद कंप्लीटली गल जाता है। तो ठीक है ना, इसको कहा गया एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। मतलब कि लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। ओके, एंड सेकंड थिंग, इट मेक द एसिडिक फूड अल्कलाइन। जो फूड एसिडिक था, अब स्टोमक में हमने पढ़ा था HCl मिलने की वजह से खाना क्या हो गया था? एसिडिक हो गया था। और यहां पर क्या होगा ना, बाइल जूस के साथ मिलके खाना क्या हो गया? बेसिक हो गया। इट मेक द एसिडिक फूड अल्कलाइन। नेक्स्ट, अब पैनक्रिएज का रोल देखते हैं। पैनक्रिएज भी एक ग्लैंड प्रेजेंट है आपकी बॉडी में। पैनक्रिएज का रोल क्या है? देखो, ये पैनक्रिएज है। यहां पर पैनक्रिएज सीक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएज से प्रोड्यूस होता है पैनक्रिएटिक जूस। इट कंटेन्स एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, दैट इज डाइजेस्टिव प्रोटीन, एंड लिपेज, द डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट। और एक चीज होता है इसका नाम है पैनक्रिएटेज। ओके, glands of the walls of small intestine secreted intestinal juices which contains enzymes. They finally convert proteins to amino acids. अब देखो, जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा? यहाँ पर प्रोटीन लिखा गया है, लेकिन मेनली क्या होता है यहाँ पर ना, पेप्टोन होता है। पेप्टोन कहाँ हुआ था ना, जो पेप्सिन था प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर पेप्टोन सिंपलेस्ट प्रोडक्ट एमिनो एसिड में बदल जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन। और लिपेज क्या करेगा ना, लिपेज इट कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फैट इमल्सिफाई हुआ था बाइल सॉल्ट के कांटेक्ट में आके फैट के जो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स बने थे वो यहां पर क्या होगा ना, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। और जो मैंने एक और जो नाम दिया पैनक्रिएटेज, वो क्या करेगा ना, जो माल्टोज शुगर था, माल्टोज शुगर सिंपल शुगर जो फॉर्मेशन हुआ था माउथ में ही, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, वो बदलेगा यहां पर सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज? ये काम करता है। इसके आपका पैनक्रिएटेज के बारे में मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, सिर्फ ट्रिप्सिन और लिपेज के बारे में है, तो सिर्फ इन दोनों के बारे में आप याद रखो। डाइजेस्टिव फूड टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होगा नेक्स्ट, देखो यहां पर आते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है ना, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। इनर लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में अंदर की तरफ क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, इस तरह से, ऐसे क्या है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जिसको विली कहा गया। ठीक है, अब इनके थ्रू फूड पार्टिकल्स ट्रैवल करेगा। जैसे एक फूड पार्टिकल है, ये भी एक फूड पार्टिकल है, ऐसे लार्जर स्मॉलर फूड पार्टिकल्स हैं,
कुछ डाइजेस्ट हो चुके हैं, कुछ आपका डाइजेस्ट नहीं हुए हैं। तो जो डाइजेस्ट हो गया है वो जब इधर से ट्रैवल करेगा क्या होगा ना, यहाँ पर जो विली रिच इन ब्लड वेसल्स, विली कंटेन्स ब्लड वेसल्स विच टेक द और विच एब्जॉर्ब द फूड एंड ट्रांसफर इनटू द सेल्स। अभी जो विली है, जब ये फूड ट्रैवल करेगा, जो फूड डाइजेस्ट हो गया था वो इधर ब्लड वेसल में डिफ्यूज हो जाएगा, ब्लड में आके मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ब्लड का काम क्या है भाई, ट्रांसपोर्ट करना, तो ये उसको ट्रांसपोर्ट करने में लग जाएंगे सिंपली, है ना। इन सेल्स इट इज यूटिलाइज्ड टू ऑब्टेन एनर्जी, बिल्ड अप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यू। ऑब्वियसली सेल के पास ग्लूकोज पहुंच गया, अब वो ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगा जिससे कि नए नए टिश्यू बनेंगे, जो पुराने डेड टिश्यू है उनकी जगह रिप्लेस होगा, और कुछ टिश्यू अगर इंजूर्ड हो गए हैं और उनको रिपेयरिंग की जरूरत है वो रिपेयर होंगे। क्लियर है। तो विली में ही एब्जॉर्ब होता है, और विली कहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, कुछ फूड ऐसे भी होंगे जो कि आपका यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं हुए होंगे, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड वो कहां पर आ जाएंगे ना, वो एंट्री करेंगे आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, एंट्री करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे वो। नेक्स्ट, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड इज मूव्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। अब जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन के जो वॉल है वो एब्जॉर्ब करेगा एक्स्ट्रा वाटर को, जो उस अनडाइजेस्टेड फूड के साथ ट्रैवल कर रहा था, एक्स्ट्रा वाटर वो एब्जॉर्ब हो जाएगा कहां पर, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, और सॉलिडिफाई होने के बाद वो पूरे आपका लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल करते करते रेक्टम में आके स्टोर होगा, यहाँ पर रेक्टम में आके वो स्टोर होगा, और फिर एनस के थ्रू बाहर निकल आ जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है ना। और यहाँ पर ल्यूमन ऑल्सो इज रेगुलेटेड बाय अनल स्फिंक्टर। अनस के पास भी क्या होता है ना, एक स्फिंक्टर मसल है, इसको अनल स्फिंक्टर कहा गया, और इसी अनल स्फिंक्टर के थ्रू ये जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकल आएगा, इसको एक्सक्रीशन कहा गया, ओके। और ईजेशन भी कहा जाता है इसे, ईजेशन। क्लियर। और क्या देखो यहाँ पर डेंटल कैरिस के बारे में, एक्स्ट्रा टॉपिक है ये डेंटल कैरिस। डेंटल कैरिस है टूथ डिके। It is a gradual softening out and demineralization of enamel and dentine due to the production of acid by bacteria. They convert sugary food to acids. देखो यहाँ पर जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो दांतों के बीच में कुछ खाना आके अटक जाता है, और खाने में मोस्टली क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट है ना, स्टार्च हम खाते हैं, तो यहाँ पर क्या अटक गए, और बाहर जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया भी एंट्री कर लेते हैं और उस खाने के ऊपर चिपक जाते हैं, खाने में बैक्टीरिया चिपक गए, ठीक है ना, अटैच हो। अटैच होने के बाद बैक्टीरिया किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं ना, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं बैक्टीरिया शो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि बैक्टीरिया अपने अंदर का जो एंजाइम है उसको बाहर निकालते हैं, है ना। तो यहां पर दांतों के बीच में क्या होगा ना, एसिड प्रोड्यूस हो गया, और बैक्टीरिया इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। और यही बैक्टीरिया आपकी एसिड प्रोड्यूस कर करके धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे डीके करेंगे, टूथ डीके करते रहेंगे। और अगर ये जो पल्प एरिया में आ गया, ये इस एरिया को कहा गया पल्प, ओके। पल्प में आते ही पेन स्टार्ट होने लगेगा, ब्लीडिंग होगा, पेन होगा, है ना। मास ऑफ द बैक्टीरियल सेल टुगेदर विद द फूड पार्टिकल स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लग। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे आके चिपक जाते हैं और ये अपने ऊपर एक कवर बना लेते हैं, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर बना लेते हैं, जिससे कि माउथ में प्रेजेंट सलाइवा इनके ऊपर कोई एक्शन ना कर सके, क्योंकि सलाइवा एक्शन करेगा तो क्या होगा, सलाइवा उस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में, और सिंपल शुगर को बैक्टीरिया एज ए फूड की तरह इंटेक नहीं कर पाता, तो स्टार्च में ही बैक्टीरिया लगते हैं। तो क्या करेंगे, सलाइवा उनके ऊपर अटैक ना करे, उनकी फूड को अटैक ना करे, इसलिए क्या करते हैं ना, एक कवरिंग बना लेते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके अपने ऊपर एक मास ऑफ बैक्टीरियल सेल
they make dental plaque. It prevents saliva reaching the tooth surface to neutralize acid. और सलाइवा उन तक नहीं पहुंच पाता और एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. एसिड का फॉर्मेशन यहां पर हो गया. ओके, सॉरी. और इसी एसिड से, इसी डेंटल प्लॉक से बचने के लिए आपको क्या करना होगा? ना यू हैव टू ब्रश योर टीथ. आपको ब्रशिंग करना होगा. सिंप्लीफाई. ओके, दो बार ब्रश करने पर आप आइदर मॉर्निंग में तो ब्रश करते ही हो, रात में डिनर के बाद भी ब्रश करोगे तो ये प्लॉक ऑटोमेटिकली हट जाएगा और फिर आपकी टीथ भी क्या होगा? सुरक्षित रहेगा. डेंटल कैरियस नहीं होगा. क्लियर है? इसके साथ आपका न्यूट्रिशन और डाइजेशन टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट है आपका टॉपिक रेस्पिरेशन. ओके, नाउ स्टार्ट द टॉपिक रेस्पिरेशन. बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स शो रेस्पिरेशन. मीन्स दे टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. Like humans also. So listen. What is respiration? That is the oxidation of food material in cells to release energy for various life processes. सारे फंक्शन करने के लिए फूड मटेरियल का ऑक्सीडाइज होना, एनर्जी फॉर्मेशन करने के लिए, ताकि सारा लाइफ प्रोसेस होता रहे, इसको कहा गया रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग अप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ब्रीदिंग कहा गया. But respiration is the oxidation of food material in cells to release energy for various life processes is called respiration. Some organisms use oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water. Some do not use oxygen. कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बदल सके, और कुछ ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं करते हैं. अब देखो एक्सपेरिमेंट्स, ये भी आपका प्रैक्टिकल में हमने डिस्कस किया था अभी. एक्सपेरिमेंट टू प्रूव रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब. लाइम वाटर मीन्स जो आपका लाइम अवेलेबल होता है, जो आपके पान के ऊपर लगाई जाती है, चूना जिसको बोलते हैं, है ना, उसको लेना है लाइम वाटर इन 2 टेस्ट ट्यूब. इन वन ब्लो एयर विथ लाइम वाटर, ब्लो एयर थ्रू लाइम वाटर, जैसे डायग्राम में दिया गया है, बी वाला डायग्राम में दिया गया है. एयर को ब्लो किया गया इस तरह से. इट इमीडिएटली टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, जो कि जल्दी ही लाइम वाटर मिल्की में बदल जाएगा. दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है? एयर को पास करना है, लेकिन एक सिरिंज और पिचकारी के हेल्प लेके. इट टेक्स मच टाइम टू टर्न लाइम वाटर मिल्की. इट शोज दैट द ब्रीथ आउट एयर कंटेन्स मोर CO2 एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक एयर. दूसरा एक्सपेरिमेंट टू प्रूव रिलीज ऑफ CO2 ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ईस्ट. दैट इज ईस्ट भी क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट क्या है? कुछ ईस्ट को डालना है फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन में. जैसे यहां पर दिया गया, टेस्ट ट्यूब में लेना है आपको शुगर सोल्यूशन और फ्रूट जूस, उसमें कुछ ईस्ट को डालना है. टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ 1 होल्ड कॉर्क, और इसे कॉर्क का हेल्प लेके कवर कर, जिसके ऊपर एक होल होगा. फिट द कॉर्क विथ बेंट ग्लास ट्यूब, जैसे यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब लिखा गया है, बेंट ग्लास ट्यूब. डीप इट फ्री एंड इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. और ये जो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया गया है, उसको ऐसे आपको फिट करना है. एयर टेकन आउट थ्रू द टेस्ट ट्यूब मेक्स लाइम वाटर मिल्की. इट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 इन द मिक्सचर ऑफ ईस्ट एंड शुगर सोल्यूशन, हेंस फर्मेंटेशन ऑकर. और ईस्ट आपकी फ्रूट जूस शुगर सोल्यूशन के साथ मिलके प्रोड्यूस किया करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और वही CO2 इस बेंट ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करते हुए टेस्ट ट्यूब में जो लाइम वाटर था उसको मिल्की में बदल देगा, और इस तरह से जो फ्रूट जूस शुगर सोल्यूशन था वो फर्मेंट हो जाएगा. अब जो यहां पर दिया गया, देखो, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे. क्या क्या पाथवे हैं? ग्लूकोज प्रोड्यूस हो गया, और ग्लूकोज आपकी जो हमने जो खाना खाया था उसे ग्लूकोज बना. कैसे बना? हमने जस्ट अभी ऊपर कंप्लीट किया था डाइजेशन टॉपिक में. अब जो ग्लूकोज था वो एंट्री करेगा सेल के अंदर, है ना. सेल के अंदर आते ही, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आते ही ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा. ग्लूकोज क्या होगा? टूट जाएगा. ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था? C6H12O6
मतलब C यहाँ पर कितना था, 6 था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल बदल जाएगा 2 पायरुवेट में। यहाँ पर 2 पायरुवेट बदल जाएगा, एक ग्लूकोज बदल जाएगा 2 पायरुवेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। और यहाँ पर कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। कितना एनर्जी प्रोड्यूस होगा ना, 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होगा इसमें। ओके, और फिर ये नॉर्मली साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर आने के बाद ये चलाएगा कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आके ऑक्सीजन के साथ मिलके ये क्या होगा, एनर्जी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल जाएगा। एनर्जी ज्यादा बनाता है, अप्रोक्सीमेटली 36 ATP एनर्जी बनाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको कहा हमने एरोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ेंगे हम आगे इसके बारे में, समझ लेना अच्छी तरह से। ग्लूकोज सेल के अंदर आया, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आते ही ये बदल गया किसमें ना, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। और यही पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और पायरुवेट में ग्लूकोज पायरुवेट में बदलते ही 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद ये पायरुवेट एंट्री करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। और यहाँ पर ज्यादा अमाउंट की एनर्जी बनाता है, कितना कहेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 36 ATP एनर्जी बनाता है। इसको हमने कहा एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जहां पर ऑक्सीजन का यूटिलाइज होता है उसको हमने कहा कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? तो टोटल एरोबिक रेस्पिरेशन में अबाउट 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होता है। 38 ATP एनर्जी बनता है टोटल, 2 यहाँ पे और 36 यहाँ पे। फिर आते हैं, कभी कभार क्या होता है जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि रनिंग वगैरह हो गई, विगोरियस एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट करता है, तो आप जोर जोर से सांस भी लेते हो, है कि नहीं? तो वहाँ पर क्या होता है, जल्दी ब्रीदिंग करने पर ब्लड इतनी तेजी से बॉडी में फ्लो नहीं कर पाता, मतलब कि सारे सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, खासकर मसल सेल। ठीक है? और उस टाइम आपकी मसल सेल को ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पाया, तो जो पायरुवेट था ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये बन जाता है लैक्टिक एसिड। पायरुवेट कन्वर्ट टू लैक्टिक एसिड। अब ऑक्सीजन का यूटिलाइज नहीं हुआ तो सिर्फ लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। जो एनर्जी यहाँ पर था 2 ATP, यही 2 ATP यहाँ पर भी आ जाता है। क्लियर? ये कहाँ होता है? हमारे मसल्स में। अब जहाँ पर ऑक्सीजन की यूटिलाइज नहीं हो रहा उसको हम नाम दिया एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन और कहां पर होता है ना, ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन ईस्ट, जहां पर पायरुवेट बदलता है इथेनॉल में। इथेनॉल एक 2 कार्बन कंपाउंड है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो हमने अभी ऊपर एक्सपेरिमेंट में देखा, और एनर्जी आ जाता है। यही 2 ATP एनर्जी यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? ये भी एक तरह का आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब डिटेल्स पढ़ते हैं इसके बारे में। Anaerobic respiration is the respiration in the absence of air, that is oxygen. It releases less energy. Example, in yeast the pyruvate is converted to ethanol and CO2. It occurs during fermentation. yeast में पायरुवेट बदल जाता है इथेनॉल में, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड में भी प्रोड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। इसको फर्मेंटेशन कहा गया। इथेनॉल प्रोड्यूस होता है ईस्ट के थ्रू, इसलिए ईस्ट का इस्तेमाल होता है डिफरेंट बेवरेजेस में। बेवरेज कंपनी जो हार्ड ड्रिंक वगैरह बनाते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ आपका कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसको इस्तेमाल की जाती है बेकरी इंडस्ट्रीज में, जहां पर ये ब्रेड वगैरह बनता है। ठीक है? Sometimes when there is no oxygen in our muscle cell, the pyruvate break down into lactic acid, 3 carbon compound. This build up lactic acid in muscle during sudden activity causes cramp. ऐसे मसल में पेन होगा जिसको मसल क्रैम्प भी कहा जाता है। अब आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज द रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुआ तो एरोबिक कहा गया। इट रिलीज मच एनर्जी। एग्जांपल 36 ATP एनर्जी कहा हमने। Here pyruvate breakdown using oxygen in the mitochondria giving 3 CO2 molecule and water. 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही रह जाता है ATP के फॉर्म में, और बाकी CO2 एंड वाटर हम ब्रीथ आउट कर लेते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट देखो, यहां पर डिटेल्स दिया गया है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन
एंट्री करता है सेल मेम्ब्रेन में, जहां पर ग्लूकोज बदलता है पायरूवेट में, जिसको कहा गया ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है इसे। ओके, और यहाँ पर 2 एटीपी एनर्जी बन गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलके पायरूवेट क्या बनाता है ना, एटीपी, जो कि आपका एनर्जी सोर्स है, एनर्जी करेंसी है, और CO2 एंड H2O, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस होता है। Energy related cellular respiration is used immediately to synthesize ATP molecule, that is called energy currency, from ADP and inorganic phosphate. ADP के साथ एक inorganic phosphate बनता है और जिसमें कि आपका ATP प्रोड्यूस होता है। ATP used to fuel all other cellular activities. When the terminal phosphate linkage in ATP is broken with water, energy 30.5 kilojoule per mole is released. ये एक्स्ट्रा डेटा है आपका। इट डिराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन सेल। तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा गया। ए बैटरी इज यूज्ड टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड टू फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स एक्सेट्रा। एटीपी कहाँ यूज होता है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन में, प्रोटीन को बनाने में, और नर्व इंपल्स की कंडक्शन में, मैसेज ट्रांसफर होने में भी एटीपी यूज होता है। नेक्स्ट, गैस एक्सचेंज इन प्लांट में भी गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। अब दिन में तो हमने देखा CO2 एंट्री होता है स्टोमाटा के थ्रू, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नाइट के टाइम पे जब सनलाइट की एब्सेंस होता है तो प्लांट रेस्पायर करता है। कैसे रेस्पायर करेगा ना, प्लांट इंसान की तरह, दूसरे एनिमल्स की तरह एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी स्टोमाटा का यूज होता है। इट ऑकर्स थ्रू स्टोमाटा, हियर CO2 and oxygen are exchanged by diffusion. The large internal spaces in leaf help in the cell in contact with the air. During daytime, CO2 formed by respiration in the is used for photosynthesis. दिन के टाइम में जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं वो प्लांट यूज कर लेते हैं। So CO2 is not released out but oxygen is released. अब CO2 जब यूज हो रहा है तो ऑक्सीजन निकलता है, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं दिन में। रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उस टाइम CO2 रिलीज्ड बट ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड। CO2 निकलता है और ऑक्सीजन नहीं निकलता रात के टाइम पे। ये प्लांट के थ्रू होता है। एनिमल्स की बात करेंगे तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी से ही ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, क्योंकि पानी का सिंबल क्या है? H2O, O मतलब ऑक्सीजन, वहां से ये ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में यूज होता है। इन फिशेस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन गिल्स एंड गिल स्लिट्स बिहाइंड देयर आईज। फिश में क्या होता है ना, फिश में है आपका ऐसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम देख सकते हो, गिल्स है, गिल स्लिट है और अपर कुलम है। दे मे बी कवर्ड बाय अपर कुलम, जो कि इनको कवर करके रखता है। और जैसे ही फिश के थ्रू फिश माउथ को ओपन करता है, वाटर एंट्री होता है माउथ के थ्रू, गिल्स में टकराता है और फिर वाटर स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, और ऑक्सीजन यूज होता है फिश की बॉडी में, और यहां पर एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकल के आ जाता है। क्लियर है? ड्यूरिंग ब्रीदिंग फिश ओपन्स एंड क्लोज माउथ एंड गिल स्लिट्स इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड टाइमिंग। दे टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड पंप ओवर द गिल्स। फ्रॉम द गिल्स dissolved is taken up by the blood. अब पानी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है कंपेयरिंग टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन का 21% जो है, पानी में वो बहुत ही कम होता है। इसी वजह से द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लोअर देन द एयर, सो द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसलिए ये जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये जल्दी ज्यादा ब्रीदिंग करते हैं कंपेयरिंग टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म से उनके साथ कंपेयर करेंगे तो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादा तेजी से ब्रीदिंग करते हैं। और एनिमल्स की बात करेंगे, इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ब्रीथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। दे इंक्रीज सरफेस एरिया व्हिच इन कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर। जैसे कि इंसेक्ट है, उनके पास ऐसे स्पिराकल्स होता है और ट्रैचियल सिस्टम होता है, और हमारे पास ऐसे लंग्स हैं।
Surface of respiratory organ is very fine and delicate for gaseous exchange. To protect this surface, it is placed with the body. So some passages are necessary to carry air in and out of the respiratory organ. जो ऑर्गन्स होते हैं वो बहुत ही फाइन है और डेलिकेट होता है, नाजुक होते हैं ये, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए इनको बॉडी के अंदर ही प्लेस किया गया है, रखा गया है. सो सम पैसेजेस आर नेसेसरी टू कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन. अब इंसान के बारे में दिया गया रेस्पिरेशन, तो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं. जो आपका सेकेंड इंपोर्टेंट टॉपिक है पैराडाइजेशन था, दूसरा रेस्पिरेशन है. देखो, इट इन्वॉल्व्स लंग्स एंड एयर पैसेज. एयर पैसेज स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स. यहाँ पर आपका नॉस्ट्रिल्स है, इस जगह पे नॉस्ट्रिल्स है, थ्रू विच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी. एयर पैसेज लाइंड विथ फाइन हेयर एंड म्यूकस टू फिल्टर द एयर. एयर पैसेज स्टार्ट होता है नॉस्ट्रिल से, ठीक है ना, जिसके थ्रू एयर बॉडी के अंदर एंट्री होता है. और इसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं. आप नोज में देखोगे तो नोज में क्या है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से दो पार्ट के थ्रू एयर एंट्री होता है. और एंट्री करते यहाँ पर क्या है, नॉस्ट्रिल में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन काम है एयर को फिल्टर करना, जो डस्ट पार्टिकल्स उनको ट्रैप करके रख लेना. और म्यूकस क्या होता है ना, म्यूकस आपकी इस जगह पर प्रेजेंट है. यहां पर जो ट्राचिया लिखा गया है, यहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है. जब आपको जुकाम होने पर जो नोज से प्रोड्यूस होता है उसको म्यूकस कहते हैं, ठीक है ना. और ये जो म्यूकस है, इनका भी काम है फिल्टर करना एयर को. और तो एयर कैसे ट्रैवल करता है ना, नॉस्ट्रिल्स, नसल पैसेज, फारिंग्स, लारिंग्स, ट्राचिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स. नॉस्ट्रिल, फिर आपका नासल पैसेज, डायग्राम देख सकते हो. नसल पैसेज का फारिंग्स, फिर आपका गया लारिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है लारिंग्स को. फिर आता है आपका ट्राचिया, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड देन लंग्स. इस पोर्शन से एयर ट्रैवल करता है. रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इन द थ्रोट एंड ट्राचिया प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ एयर पैसेज. यहां पर ट्राचिया के पास क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. तो जब आप ब्रीद आउट करते हो, अब म्यूकस है, और म्यूकस भी आपको पता है ये थोड़ा स्टिकी होता है ना, ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो जब ब्रीद आउट करने पर ट्राचिया कहीं आपस में कोलैप्स ना हो जाए, चिपक ना जाए, इससे बचाने के लिए क्या है, यहाँ पर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको बचाते हैं कोलैप्सिंग से. नेक्स्ट, within the lungs the passage divides into smaller tube, bronchi and bronchioles. अब ट्राचिया आगे चल के डिवाइड हुआ है ब्रोंकाई में, दो पार्ट में डिवाइड है. फिर उसके बाद बहुत सारे ब्रांचेस निकले हुए, इसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है. ब्रोंक्यूल टर्मिनेट इनटू बैलन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड alveoli. और एंडिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल के एकदम लास्ट पार्ट में बैलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका नाम है alveoli. और इसी alveoli में ही होता है गैसेस एक्सचेंज, मतलब कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकलता है. alveolar wall कंटेन्स नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. alveoli के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है. नेक्स्ट इज व्हेन वी ब्रीथ इन, रिब्स आर लिफ्टेड एंड डायफ्राम गेट्स फ्लैटेंड. जब हम ब्रीथ इन करते हैं, रिब क्या होता है, लिफ्ट होता है, ऊपर की तरफ उठता है, और डायफ्राम फ्लैटेंड होता है. डायफ्राम क्या है ना, आपकी यहां पर रिब केज के नीचे ऐसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको डायफ्राम कहते हैं. ये ऐसे डोम शेप का होता है, नॉर्मली इस तरह से डोम शेप का होता है ये. तो जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो ये रिब केज ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, लिफ्टेड, और डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाता है. इस तरह से क्या हो गया, ऐसे फ्लैट हो गया ये, ताकि आपकी जो लंग्स एरिया है वो बढ़ जाए, चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाए, एंड एयर एंटर्स द लंग्स alveoli. द ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी रिलीज इनटू द alveoli. अब ये होने पर ब्लड से जो CO2 आया था, CO2 कहां से आया ना, सेल से निकला. सेल में कैसे निकलेगा, ग्लूकोज पायरुवेट और ऑक्सीजन की रिएक्शन से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी तो बना, उसके साथ साथ CO2 प्रोड्यूस हुआ, CO2 एंड वाटर. अब जो CO2 था वो ब्लड लेके आएगा इसी alveoli के पास. अब CO2 बाहर निकल के आ जाएगा सिंपल डिफ्यूजन से, और यहाँ पर ऑक्सीजन टेकन अप बाय द ब्लड इन द alveolar ब्लड वेसल.
एंड ट्रांसपोर्ट इन द ऑल द बॉडी पार्ट। फिर लंग से हार्ट में आएगा ब्लड, हार्ट से सारे बॉडी ऑर्गन के पास जाएगा। सेम प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा हमारी बॉडी में। सेल ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड लेके आएगा हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से ब्रीथ आउट कर देंगे हम, है ना। तो एक बार ब्रीदिंग में ये सारा काम हो जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल द लंग्स ऑलवेज कंटेन ए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड रिलीज CO2। जब हम ब्रीदिंग साइकिल होता है, एक बार सांस लेके छोड़ने को कहा गया ब्रीदिंग साइकिल, इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ठीक है। इनहेलिंग एक्सहेलिंग करने पर क्या होता है ना, आप जैसे एक्सहेल कर लिया, एयर को पूरा छोड़ दिया, तब भी लंग्स में कुछ अमाउंट के एयर रहता है, उसको कहा गया रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर ब्रीथ आउट कर दिया आपने, एक्सहेल कर लिया आपने, तो डायाफ्राम जो फ्लैटेंड हुआ था वो फिर से डोम शेप का हो जाएगा, ताकि लंग्स कंप्लीटली एयर को बाहर छोड़ दे रेसिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के। और फिर large sized animals diffusion pressure is not sufficient to deliver oxygen in all body part. Obviously जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से ऑक्सीजन को सब जगह पर ट्रांसफर डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए पार्टिकुलर पिगमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके लेके पहुंचेगा पूरे बॉडी में सारे सेल के पास। और वो पिगमेंट क्या है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये कहाँ होता है ना, आपकी आरबीसी में, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस में होता है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास हाई एफिनिटी पावर होता है ऑक्सीजन के लिए। एफिनिटी मतलब कि बाइंडिंग पावर, पकड़ के रखने का पावर, है ना, हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। नेक्स्ट, CO2 is more soluble in water than oxygen and hence is mostly transported in the dissolved form in the our blood. CO2 जल्दी वाटर में डिजॉल्व हो जाता है कंपेयरिंग टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के लिए तो चलो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, लेकिन CO2 के लिए आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा में CO2 डिजॉल्व हो जाएगा और ट्रैवल कर लेगा। डायग्राम देखो किस तरह से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को बाइंडिंग करते हैं और फिर जैसे ही टिश्यू के पास पहुंचते हैं, सेल के पास पहुंचते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं इस तरह से। अब नेक्स्ट थिंग, if the alveolar surface were spread out it would cover about 80 मीटर स्क्वायर। हमारे जो alveoli है इतना टाइटली पैक है, अगर लंग्स को निकाल के किसी भी पर्सन के निकाल के अगर आप उसको स्प्रेड करके रखोगे जमीन पे तो कितना एरिया वो ले जाएगा ना, अबाउट 80 स्क्वायर मीटर का एरिया लेगा। मतलब कि एक पूरा टेनिस कोर्ट का साइज। टेनिस कोर्ट देखा है आपने जहां पर टेनिस खेली जाती है, उस इतना एरिया वो कवर कर लेगा आपके लंग्स, 80 मीटर स्क्वायर। सो सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अबाउट 1.9 स्क्वायर। और बाकी ह्यूमन बॉडी लंग्स को छोड़ के, एल्वेओलर सरफेस को छोड़ के बाकी जगह को भी अगर आप स्प्रेड करके रखो तो कितना एरिया लेगा, सिर्फ 1.9 मीटर स्क्वायर लेगा, जबकि एल्वेओलर सरफेस कितना ले रहा है, 80 स्क्वायर मीटर। तो समझो कितना टाइटली पैक है ये गैसेस एक्सचेंज करने के लिए। अगर हमारी बॉडी डिफ्यूजन की तरह अगर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इट वुड टेक 3 ईयर फॉर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गेट टू फ्रॉम आवर लंग्स। आपकी पैर से लंग्स के पास पहुंचने के लिए एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को 3 साल का टाइम लगता। तो शुक्र है हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो कि इसको बहुत तेजी से कराता है। अब नेक्स्ट थिंग, बीमारियां। स्मोकिंग डेंजरस टू आवर हेल्थ। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट अफेक्ट टंग, लंग्स, हार्ट एंड लीवर। जो टबैको होता है और टबैको जो प्रोडक्ट होता है वे आपके लंग्स को, टंग को, हार्ट, लीवर को प्रॉब्लम क्रिएट कराता है, अफेक्ट करते हैं। स्मोकलेस टबैको ऑल्सो कॉजेस हार्ट अटैक, स्ट्रोक, पल्मोनरी डिजीज एंड कैंसर। ओरल कैंसर इज हाईली रिपोर्टेड इन इंडिया ड्यू टू टबैको च्यूइंग इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। स्मोकिंग डिस्ट्रेस सिलिया। सिलिया क्या होता है ना, सिलिया भी फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सिलिया कहाँ होता है, आपकी ट्रैचिया में होता है, जो विंड पाइप है ट्रैचिया, उसमें ये पाया जाता है सिलिया। सिलिया का काम होता है कि ये म्यूकस को प्रोड्यूस कराएगा, म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प कराता है। तो
जो स्मोकिंग करते हैं लोग उनमें क्या होगा ना, ये सिलिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। As a result, germ and dust smoke enters the lungs and causes infection, cough and lung cancer. तो सिलिया क्या का काम क्या होता है सर, जो यहाँ पर म्यूकस का काम क्या है ना, ये फिल्टर करता है एयर को, एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको फिल्टर करता है। और तो अगर ये सिलिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो म्यूकस प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा, या फिर म्यूकस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, या तो पूरी तरह से आपकी ट्रैचिया ब्लॉक हो सकता है, या फिर प्रॉपर तरीके से म्यूकस अपना काम नहीं करेगा, मतलब कि डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप नहीं कर पाएगा। ट्रैप नहीं होगा तो ये डस्ट पार्टिकल्स ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हुए आल्वियोलाई वॉल को, इनर वॉल को ब्लॉक कर देंगे, जो कि आगे चल के इन्फेक्शन होगा, कफ होता रहेगा, लंग कैंसर होता रहेगा, जो कि कॉमन कॉज है डेथ का। उसके साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर की जो पार्ट 1 था जिसमें हमने कंप्लीट किया 2 मेन टॉपिक, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2 में 2 और टॉपिक रहेगा जिसमें कि हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो वीडियो को कंप्लीटली देखना, आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये, क्योंकि 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स हैं। तो प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी के साथ साथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी भी देखना। हो सकता है हमसे कुछ टॉपिक छूट गया हो, कुछ टर्म मैंने आपको नहीं समझाया हो, क्योंकि मैं आपको इस स्लाइड से ही पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ से ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर कोई भी आपको डाउट लगे, मेरा नंबर है आपके पास, या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, उसमें आपका कोई भी डाउट हो इन 2 टॉपिक्स को लेके आप मुझे पूछ सकते हो। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय जगन्नाथ।